India's elderly population comprises a little over 10% of the country's 140 crore people. This number is estimated to double up to 20.8% by 2050, which will be around 34.7 crore people. Increasing life expectancy and decreasing fertility rates are altering demographic equations across the globe. India is set to face an aging population bulge at a time when joint family traditions have broken up and there is no institutional care infrastructure either. Despite filial piety forming an integral part of traditional Asian cultures, countries like China, Japan, and Singapore have heavily invested and pioneered models of health and social care for older adults. But in India, elderly people are strangely missing from public policies, debates, and in the poll season from political parties' election manifestos. We are far from being a geriatric-friendly society. Older people in India are traditionally expected to detach themselves from worldly pursuits. But with WhatsApp, Facebook, and unlimited streaming content, the source of Greyjoy is changing. We met 5 couples in Delhi above 75 years of age to understand how the elderly in India spend their daily life, how they stay healthy, and more importantly, what keeps them happy. अब याद आया आपको 87-year-old VK Gangal and his 83-year-old wife Santosh live in South Delhi's Vasant Kunj area. On 5th March, the Gangals marked their 60th wedding anniversary with a havan at the Arya Samaj along with a few family members and friends. It wasn't as lavish as their 50th anniversary that was thrown by their 2 sons who live in the US. I was born and brought up in Ajmer, Rajasthan. I had my schooling there. Therefrom, I went to IIT Kharagpur. Then I got into Steel Authority at Durgapur Steel Plant. I spent more than 30 years there. Then I got transferred to Bhilai in MP, Durg. After retirement, I came here to Delhi. I have 2 sons. Both are from IIT and BIT Misra and now settled in USA. Instagram Reels have popularized the idyllic retired life by the beach or in the mountains, far from the madding crowd. But the elderly wants to be in the thick of things, flexing their age and wisdom. Dharmavati Gautam, 76, relaxes on her bed alongside her daughter-in-law as she strokes her cat Bhura. In the adjacent room, her husband, Chidda Singh Gautam, 81, watches news on a flat-screen TV. The Gautams shared the 2-room kitchen house in Shahadra with their daughter-in-law and their grandsons. They lost their son to COVID in 2020. आपका रूटीन क्या रहता है? वॉक वगैरह पे जाते हैं सुबह शाम? सुबह अभी तो नहीं जा रहे ठंड की वजह से। अब ये ठंड जब कम हो जाएगी अप्रैल से शुरू करेंगे। पार्क में जाते रहे पहले। पास में है तो सुबह शाम आप लोग जाते हैं, ऐसा कोई रूटीन रहता है? फिर उसके बाद नहा के नाश्ता है पानी करना, फिर उसके बाद 1:30-2 बजे खाना लंच, फिर इसके बाद शाम को 5-6 बजे के करीब फिर टी और रात को 10 के आसपास फिर खाना। ये रूटीन रहा। 5 बजे के आसपास 5 बजे से लगते हैं 9 बजे तक। रात को 10 बजे 10 साढ़े 9 तक देखता हूँ। सिर्फ न्यूज़ देखते हैं? वैसे वो भी देख लेते हैं बीच में कोई सीरियल वगैरह नहीं, कुछ नहीं। कौन से कैसे सीरियल देखते हैं ज्यादातर, किस तरह के? ये कृष्णा चल रहा है या तो उसे देख लेती हूँ, या ये अटल चला, अटल थ्रू अटल बिहारी ये चला, और एक बाबा साहब के ऊपर, और कुछ नहीं देखते। भीमराव अम्बेडकर। 86-year-old retired government officer Subhash Chandra Rai begins his day by replying to 10 good morning messages on WhatsApp. Santosh Gangal looks to the internet for her daily doses of spiritual and health tips and good morning quotes in her Arya Samaj, Mahila Samaj and Vedic Prachar WhatsApp groups.
The generation that waited for the mailman and made trunk calls to relatives abroad has embraced technology and the internet. It's their source of communication and companionship away from their children and grandchildren. However, the Sharmas who live in Delhi's Najafgarh don't need a phone or the internet for company. Hasmukh Sagar Sharma, a 79-year-old retired government school headmaster, helps his son to take care of his grocery store. दिन में कितने टाइम दुकान में रहते हैं? आपका दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं सवेरे 5:30 बजे उठता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और 12 बजे तक यहीं पे रहता हूँ हैं, और 12 से 1 खाना खाना फिर सो जाना। फिर मैं आता हूँ 2 बजे और रात के 9:30 बजे तक काम करता हूँ यहाँ पे। हाँ। अब दिन में कितने कस्टमर्स का वो रहता है, मतलब कितने बच्चे आते हैं, इनका पता लगता नहीं कितने आ जाए कितने ना आए। छोटे छोटे बच्चे 1 रुपये टॉफी दे दो, ये दे दो, 10 रुपये का ओएस दे दो, ऐसे। तो आप पूरे हफ्ते में 7 दिन पूरा काम हाँ, करते हैं? नो रेस्ट। अब कितने साल से दुकान में काम कर रहे हैं? दुकान पे मैं 20 साल हो गए। हाँ, 20 ईयर। उससे पहले आप क्या करते उससे थे? पहले भी मैं हेडमास्टर था। आपको दोनों काम में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है करके, या टीचर? ये काम अच्छा लगा। इसमें पब्लिक डीलिंग होती है, बच्चों से प्यार होता है, बच्चों को मैं सिखाता हूँ जैसे गुड मॉर्निंग बोलो, बड़ों का रिस्पेक्ट यूर ऑर्डर है। मुझे बड़ा आनंद आता है इस काम में। ठीक है। और आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं? बस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बीमारी आ जाए तो गोली खा लेता हूँ, वरना ठीक है भगवान की दया से। हाँ। आप वॉक करते हैं या हाँ। एक्सरसाइज? शाम को 1 घंटा मतलब घूम करता हूँ, नहीं सवेरे और शाम को भी आधा घंटा, मतलब रोज जो है 1 घंटा और आधा घंटा बस। आप बोल रहे थे कि खुश रहना बहुत जरूरी है। भाई यही है, मेरा ध्येय भी यही है, औरों को एडवाइस भी यही देता हूँ, बी मैरी, खुश रहो। Hasmukh Sagar Sharma compares his son Rajesh to Shravan Kumar, the legendary Ramayana character who carried his elderly parents on pilgrimage in baskets suspended from a pole on his shoulders. Rajesh decided to stay with his parents after his wife left him. सर, आपके दोनों पेरेंट्स अबव 75 इयर्स के हैं, तो और आप उनके साथ रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो उनको हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आप क्या करते हो, क्या क्या ध्यान में रखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनको अकेलापन सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आज की तारीख में उनको जितना साथ दिया जाए, उनके साथ जितना घुल मिल कर रहा जाए, वो उनके लिए सबसे अच्छा है। उनको खुश रखना है, उसको खुश रखने के लिए आप उनको टाइम दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर हम सुबह शाम 10-10 मिनट भी अपने पेरेंट्स को देते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए और कोई नहीं है। अगर हम ऑफिस में भी हैं तो बीच में एक बार उनको कॉल करके उनका हालचाल पूछ लें तो बड़े खुश होते हैं। उनको अकेला ना छोड़ें, उससे से जो है उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो खुश रहेंगे। कौन से उम्र से आपने थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने का? ये लगभग 20 साल होने को आए, तब से मैंने महसूस किया कि मेरे को अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो मैंने अपने और काम छोड़ के मैंने घर में ही एक शॉप की, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके टच में रहूं, उनको ज़्यादा टाइम दे सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं। तब से जो है मैं घर में ही रहता हूं, उनके हर दुख सुख के लिए, हर परेशानी के लिए मैं 24 घंटे उनके टच में रहता हूं। आपको क्या लगता है कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा क्या मिसिंग है, या क्या कर सकते हैं लोग अपने पेरेंट्स के लिए? अपने पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये लोग उनको उनका हालचाल पूछ के, उनको टाइम दे के
देखो, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा खाना खाने की, किसी रेस्टोरेंट में खाने की, किसी 5 स्टार होटल में जाने की इच्छा नहीं होती। उनको सिर्फ यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे, हमारे दिल की बात वो सुने और अपने दिल की अपनी परेशानी वो हमको बताए। क्योंकि जो एज्ड आदमी होते हैं उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है और न्यू जनरेशन जो है वो समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं और वो अकेले परेशान होते रहते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो ज़रूर उसका सॉल्व करके देंगे। His 77-year-old mother, Dayavati, does all the household work and cooks for the family of 5. Running a house is a time-consuming job, but every Monday evening, she visits the neighborhood Shiv temple, meets fellow devotees, and sings bhajans. मोहन की मुरलिया बाज रही, मोहन की मुरलिया बाज रही, भोले ने ठुमका लगाया, बोला रास देखने आया, भोले ने ठुमका लगाया, बोला रास देखने आया, बोले सिर से साड़ी खिसक गई, बोले सिर से साड़ी खिसक गई, गुजरी सारी मुस्काए रही, गुजरी सारी मुस्काए रही, बोला मंद मंद बोला खड़ा खड़ा शर्माया, बोला रास देखने आया, बोला खड़ा खड़ा शर्माया, बोला रास देखने आया, नारी का वेश बनाया, बोला रास देखने आया।